I welcome you all again on the YouTube channel of TechUGate classes. So this is all about me, and we were studying about the machining and the machine tool operations. So both students can join this subject, which is whether from mechanical or PI students, both can join this one. In the last lecture number 15, we started the milling machine, okay, and we studied about the what how means what is the working of the milling machine, how it works, and we saw the types of the milling machine as well as the types of the cutters, okay. So on the basis of that, I told you that there is another terms, that is the types of operations, that what type of operation can be performed, okay. So there are so whatever what we have to do is we have to use the different types of the combinations using the milling cutters and the types of the milling machine which is available to us, and on the basis of that we are saying that there are different types of the operations. So in the today's lecture number 16, okay, we are going to discuss about there are different types of the operations in the milling machine, and we'll also see some of the objective problems that has been asked previously in the engineering services examination, okay. And the most important part from the engineering services conventional and the gate examination, that is a time calculation. So we'll discuss this time calculation part for the both, like when we are using the horizontal milling machine, vertical milling machine, okay. And if we'll get the time after this week, means after completion of these two, then definitely we'll go for the numerical part, otherwise that will be the next session, okay. So let's start. Okay, so first is the face milling, okay. Face milling, okay, so there are two types of the face milling. So it's not type, basically it's the combination only, okay. So this is nothing but the spindle, over that this cutter is mounted, and this is a horizontal and this is vertical. Spindle over this the cutter is mounted, okay. So this is vertical, this is horizontal. Now what we are doing is initially we are giving some depth of cut, okay, and the tool is rotating at its own only, so like this, in anti-clockwise direction we are giving the feed towards this side, okay. So whatever the material that of the workpiece that is coming in contact with the tool, that will remove the material, okay. And similarly, is initially we are keeping this tool somewhere here in the beginning, okay, somewhere here, and this is like this position. So as it is rotating, we are giving a feed, as it is rotating we are giving a feed to the workpiece towards this side, okay. So we are keeping some depth of cut initially, this is the depth of cut, okay. Initially we are keeping, and we are then we are providing the feed to the workpiece, okay. So this is how the material is removed. Some of this is the face milling, okay. But in some of the books, this operation, like when we are performing on horizontal, we they have written like it's a peripheral milling, okay. This is a peripheral milling, and we they call it as the vertical अगर है तो उसको बोलते हैं face milling, और horizontal है तो उसको बोलते हैं peripheral milling. तो confuse ना हो, by the way both are face milling only, because face milling means a removal of the material, okay. It's a way, and face is just to remove the face part. Now if you have to remove, like for an example, if this is the workpiece, okay, if this is the workpiece and we have to remove this much amount of the material, okay, this much amount of the material from this workpiece, then what we can do, we can use the horizontal along with the vertical, okay. मतलब दोनों यूज कर सकते हैं ना, तो इसमें फिर हम सिर्फ वर्टिकल वाले को ही फेस मिलिंग क्यों करें, हम हॉरिजॉन्टल वाले को भी तो कर सकते हैं ना. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट फेस मिलिंग इज नथिंग बट बोथ यू कैन यूज, ओके. देखिए इसी की बेसिस पर टाइम कैलकुलेशन भी है, बट दैट विल सी after completion of these operations, okay. Next is the up milling and down milling, okay. देखिए up milling और down milling पे there are number of objective questions, problems पूछी गई हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि ये है क्या बेसिकली, इसमें दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है. पहली चीज जिसके बेसिस पर आप इसको डिफाइन करते हो कि दिस अप मिलिंग और डाउन मिलिंग इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट of workpiece and tool.
the movement of workpiece and the tool. On the basis of that we are defining that whether it's a up milling or the down milling. ठीक है, अब ये movement क्या है, देखिए this is the this is rotating in this direction, ठीक है, clockwise. अगर ये anti clockwise rotate करेगा तो there will be no removal of the material, ठीक है, तो then you are giving a feed towards this side, ठीक है. Now initially okay, initially we are keeping like this workpiece, we are giving a little bit amount of the feed and we are depth of cut, sorry, and we are holding like this, okay. तो इस तरह से आपका initially कुछ position होगी tool की. So first the point of contact is this one, ठीक है, और point of contact को मैं इस यहाँ पे इस तरह से explain कर देता हूँ. ये जो है आपका this one is at this position. First the material, this is the workpiece is rotating, the material is coming in contact with this portion. मतलब यही टीथ की बात नहीं हो रही है, कोई भी टीथ हो सकता है इनमें से. जो टीथ यहाँ इस पोजीशन में होगा, at this position only the material and the workpiece is in the tool and the workpiece is in contact. Okay, तो मान लीजिए कि ये अगर आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो एट दिस पॉइंट द टूल इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड वी आर गिविंग द फीड टू द वर्कपीस टुवर्ड्स राइट साइड. ओके, अगर आप इसको राइट साइड फीड कर रहे हैं तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब ये जो टीथ होगा बेसिकली इस रोटेशन इज देयर, तो ये क्या होगा, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है, रोटेशन है. तो मान लीजिए कि मैं ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस पे टीथ के ऊपर बैठ के मैं उसको देख रहा हूँ. तो अगर मान लीजिए कोई चीज रोटेट हो रही है और अगर आप उसी के ऊपर बैठ जाते हैं, मतलब जो सेंटर ऑफ इनर्शिया वाला, मतलब इंस्टेंटेनियस सेंटर वाला जो कंसेप्ट है बेसिकली, ठीक है, अगर आप में इस टीथ के ऊपर ही बैठ गया हूँ एंड नाउ आई एम वाचिंग दिस टीथ, इट विल बी ट्रीटेड लाइक आपका कोई रैंडम पाथ फॉलो कर रहा होगा. बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट ही रोटेट कर रहा है, सो इट विल बी लुक्स लाइक दैट इट इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है. सो यहाँ पे आपका टूल जो है, now if you will see the workpiece then it will move in this direction towards right side, क्योंकि आपका feet इस direction में है. So this movement means at the point of contact the movement of the workpiece and the tool are opposite in nature. Okay, मतलब both are in opposite direction, ठीक है. अब दूसरा देख लेते हैं पहले जो डाउन मिलिंग वाला है. Now कटर्स हैं आपका, देखिए इस तरह से कटर्स बने हुए हैं, ये आपके कटर्स हैं, ठीक है. तो when you will rotate it anti-clockwise then only the material will remove, ठीक है. Now you have to give the feed towards this side, ठीक है, then only the material will remove. So point of contact है, हालांकि इस केस में जब आप इसको कांटेक्ट में लाएंगे that time this portion will come in contact first very easily. So ये आपका point of contact हो गया, ठीक है. अगर मान लीजिए कि मैं इस पे आपका डायरेक्शन देखता हूँ, because this teeth like for example this teeth first came in contact, तो ये आपका किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है. और आपको जो फीड आप दे रहे हैं दैट इज इन दिस डायरेक्शन. सो बोथ द डायरेक्शन ऑफ एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज सेम. ओके, अगर मान लीजिए कि दोनों डायरेक्शंस अगर सेम हैं देन वी आर कॉलिंग इट एज अ डाउन मिलिंग, एंड अगर आपकी दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं देन वी कॉल इट एज अ अप मिलिंग, ठीक है. आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू गाइस. Second जो है that is we also call this one as a conventional milling, conventional milling, and we call it as a down milling. Sorry, down तो लिखा ही है, climb milling. देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट आपका सिंपल है दोनों का, कि मतलब एक आपके पास मैकेनिकल हैमर, मैकेनिकल कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है. तो मान लीजिए कि आपको डिगिंग करनी है, ठीक है, तो हम डिगिंग करने के लिए दो तरीके यूज कर सकते हैं. मान लीजिए कि ये है आपका मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो पहला जो है दैट इज दिस वे, कि आप जहां पे खड़े हैं, जिस भी स्टैंडिंग पोजीशन में आप खड़े हैं, तो वहां से आप जब मैकेनिकल डिवाइस को चलाएंगे देन दैट विल बेसिकली डिग इनसाइड दिस सैंड, तो लाइक दिस. ओके, आप दूसरा वे क्या चूज कर सकते हैं, लाइक दिस, मतलब आप बैठिए एंड देन यू आर digging like this. Okay, so there are two ways. So ये जो है and this one, so these are the two ways. So this process we are calling it as a down milling and we are calling this as a up milling. Down because we are moving towards the down side, and this one we are moving towards the upside, means we are pushing here, means we are
pulling here, because once it will be inserted we have to pull it, and this we are pushing from the top side. Okay, तो ये आपका अप एंड डाउन मिलिंग है, ठीक है। एक इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ इट, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए, फर्स्ट व्हेन इट इज रोटेटिंग clockwise direction for the up milling, first this point is coming in contact. Okay, तो first as this point is coming in contact, तो धीरे 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 आपका फीड आप इस डायरेक्शन में देते जा रहे हैं टुवर्ड्स वर्क पीस को, एंड इट इज ऑल्सो लाइक ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका, तो ये भी क्या करेगा, आपका रोटेट हो रहा है, तो नो डाउट एक वर्क पीस से किसी न किसी टाइम तो आपसे ये जो टीथ है, अगर मैं इस टीथ की बात करूं तो ये जो टीथ है, जैसे जैसे आप फीड देते जा रहे हैं इसको इस डायरेक्शन में वर्क पीस को, तो ये जो टीथ है जो कि विच इज अटैच्ड विद द वर्क टूल। ओके, तो राइट नाउ इट इज अटैच्ड विद द, मतलब इट इज इन कांटेक्ट विद द वर्क पीस, तो जैसे जैसे आपका ये रोटेट होता जाएगा दिस विल आल्सो कमिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो जब आपका ये इस डायरेक्शन में आएगा एट दैट टाइम दिस, जब आप इसको देखेंगे इसकी प्रोफाइल को, दैट हाउ मच मटेरियल इट इज रिमूविंग, सो दिस विल बी ट्रीटेड लाइक दिस। ओके, मतलब इनिशियली आपका क्या था कि जीरो थिकनेस वाज कांटेक्ट, एंड एट द एंड देयर विल बी मैक्सिमम। ओके, now when we are talking about this one, so this is rotating clockwise anti-clockwise direction, so just see this one is the depth, means ये जो है आपका दिस इज योर एरिया, मतलब आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है आपके टीथ का, सो दिस कंप्लीट क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब ये आपका सिर्फ थिकनेस है, बैक साइड में विड्थ होगा, सो दिस कंप्लीट एरिया विल कम इन कांटेक्ट विद द वर्क पीस, मतलब यहां से कांटेक्ट में होगा, एंड देन यू आर गिविंग अ फीड इन दिस डायरेक्शन, and the rotation of this tool is also in this direction. So when you will see initially this much amount of is in contact, and as the time is going on it is like आपका जो thickness है वो zero होता जाएगा, ठीक है, because here both the direction at the point of contact is same, ठीक है। तो आपका जो डाउन मिलिंग है इसमें आपका थिकनेस जो है that moves from maximum to zero, मतलब आपका क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। अगर आप अप मिलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनिशियली आपका यहाँ पे था, then you are moving towards this side, so the thickness of chip that is moving from zero to maximum, ठीक है, means increasing, this is an increasing order, this is a decreasing order। देखिए यही दोनों चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, और यही बेसिकली दिस इज ओनली द थिंग्स व्हिच इज वी हैव टू बी कंसीडर्ड इन द अप मिलिंग एंड द डाउन मिलिंग। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दिस इज अ गेइंग मिलिंग। देखिए गेइंग मिलिंग को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, सो दैट विल बी इजी फॉर यू। देखिए आपके पास इनिशियली ये एक स्लैब है, ठीक है, या फिर बिलेट या फिर कुछ भी मान लीजिए, तो दिस हैज सम लेंथ, दिस इज जस्ट अ क्रॉस सेक्शन फ्रॉम द फ्रंट व्यू। तो मान लीजिए कि आपको देखिए ये आपका स्टैंडर्ड एग्जांपल भी है जो आपका बुक्स वगैरह में रहता है, तो एक्चुअली दैट दिस इज आई एम टेकिंग दिस वन फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग। देखिए इनिशियली क्या था, आपका ये पूरा बिलेट था, ठीक है, दिस वाज द क्रॉस सेक्शन, कंप्लीट क्रॉस सेक्शन। नाउ एट द एंड व्हाट यू हैव टू डू इज दिस वन विल बी रिमेनिंग, ये जो बॉटम पोर्शन है फर्स्ट वाला, दिस सेकंड, तो फर्स्ट जो पोर्शन है आपका मटेरियल का दैट विल बी रिमेनिंग, मतलब ये आपका रहना चाहिए, बाकी ऊपर का जो सेकंड पोर्शन है ये आपको मटेरियल रिमूव करना है। तो देखिए रिमूव करना है तो उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज है कि मैं आपको हॉरिजॉन्टल भी कर सकता हूं और वर्टिकल भी कर सकता हूं। तो जो प्रोसेस वर्टिकल का है वही हॉरिजॉन्टल का भी है, ठीक है, तो पहले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से बता देता हूं, तो वर्टिकल का मैं नहीं बताऊंगा आफ्टर दैट, बिकॉज दैट विल अननेसेसरी टेक द टाइम। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एक स्पिंडल फिक्स कर दिया है, देन यू आर माउंटिंग द कटर ओवर देयर, ओके, देन व्हाट यू कैन डू इज आपने इनिशियली आप कटर के थ्रू आपने कटर फिक्स कर दिया, देन यू हैव प्रोवाइडेड द फीड टुवर्ड्स दिस साइड, तो आपका पूरा ये डेप्थ ऑफ कट कवर हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू दैट इट हैज बीन स्टार्ट रोटेटिंग, देन यू हैव टू गिव द फीड टुवर्ड्स दिस साइड वर्क पीस, ओके, तो ये यहाँ पे आपका यहाँ तक रिमूव मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर कवरिंग दिस मच लेंथ, आपका क्या है डेप्थ ऑफ कट कम है, देन यू हैव टू पुल इट डाउनवर्ड साइड, ठीक है, ये डेप्थ ऑफ कट मेंटेन करिए, देन अगेन प्रोवाइड द फीड टुवर्ड दिस साइड, सो दिस मच अमाउंट ऑफ द मटेरियल विल कवर, ओके। नाउ अगेन द डेप्थ ऑफ कट इज हाई, सो गिव द फीड एंड लिफ्ट इट टुवर्ड्स अपसाइड, सो अगेन आपका ये डेप्थ ऑफ कट कवर हो गया, देन अगेन गिव द फीड टुवर्ड दिस साइड। तो देखिए
ये जो आपको मटेरियल रिमूव करना है, इस मटेरियल को रिमूव करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन ही यूज कर रहे हैं। सेम प्रोसेस आपका वर्टिकल के लिए भी आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। बट देखिए, आप पहले एक वेज कर रहे हैं, देन सेकंड वेज कर रहे हैं, देन थर्ड वेज पे जा रहे हैं, तो दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपका ऐसे आपको मिलियंस ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर जॉब्स जो है वो परफॉर्म करने हैं, देन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपको पता है कि आपको मिलियंस ऑफ द जॉब प्रोडक्शन करना है, देन आप उसका एक सेट ही बना लीजिए। कि मान लीजिए कोई एक सेट बना लीजिए, जो ये जो मटेरियल है पूरा, ये इस तरह का मटेरियल, व्हाट एवर द डेप्थ एंड व्हाट एवर द थिकनेस एंड व्हाट एवर द फीट दैट यू हैव टू मेंटेन, तो एक ही मटेरियल, एक ही बार में आपका पूरा मटेरियल रिमूव हो जाए। उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ये एक स्पिंडल है, ठीक है। नाउ ऑन दिस बेसिकली मैं सेम प्रोसेस के लिए ही बात कर रहा हूँ अगेन। तो सेम प्रोसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये आपका पहले दिस इज अ स्लैब मिल, ठीक है, दिस इज अ स्लैब मिल। देन साइड ऑफ दैट वी आर माउंटिंग द साइड इन द फेस मिल, ठीक है, ये आपका साइड और फेस मिल हो गया। नाउ व्हाट एवर द जॉब वाज देयर, मान लीजिए कि आपका ये, now I am directly inserting, okay, so this is your job that you will get at the end, ठीक है, this will be, ठीक है, so this will be your job that you will get at your end, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो डायमीटर आप इसका मेंटेन कर रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट आपको D1 देनी है, ठीक है, ठीक है, अकॉर्डिंगली व्हाट एवर द डायमीटर इज, डेप्थ ऑफ कट इज देयर, मान लीजिए D2 मान लीजिए, और इधर भी D2 है। सो ये जो D2 by D1 का रेशियो है, दैट शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द डायमीटर D2 by D1, ठीक है। ये जो आपका इसका डायमीटर है साइड एंड फेस का, दिस इज साइड एंड फेस कटर, ठीक है, इसका डायमीटर D2 मान लीजिए, इसका स्लैब का D1 मान लीजिए। सो दिस रेशियो ऑफ दिस डेप्थ ऑफ कट विल बी इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ दिस डायमीटर। अदरवाइज क्या होगा, मान लीजिए कि अगर ये सेम नहीं है, देन व्हाट विल हैपन, दिस विल बी लाइक, दिस विल बी योर कटर, आपका स्लैब मान लीजिए कि थ्रू आउट यहाँ तक जितनी भी डेप्थ ऑफ कट आपने इनिशियली मेंटेन की, तो वहां से आपने मटेरियल रिमूव कर दिया, ठीक है, ये मटेरियल रिमूव हो चुका है। लेकिन यहाँ तक मान लीजिए आपको ये डेप्थ ऑफ कट D2 ये मेंटेन करनी थी, लेकिन अभी तक ये जो साइड वाला फेस कटर है, ये अभी तक यही पहुंचा है, मतलब दिस मच अमाउंट इज स्टिल रिमेनिंग। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो फॉर अनदर मशीनिंग, मतलब यू हैव टू गो फॉर द सेकंड टाइम, मींस यू हैव टू ऑपरेट द अनदर ऑपरेशन। So we have to keep in mind these things, okay, so this is when you are maintaining these things means, क्योंकि आपको क्या है कि अगेन मैंने क्या बोला आपको कि when you have to produce batch production, that time only we are using it। तो अगर मान लीजिए कि इस तरह की डेफिशिएंसी रह जाती है, तो पूरा लोड जो है वो आपका मतलब बेकार हो जाएगा, ठीक है। सो वी हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। सो फर्स्ट मैंने लिखा क्या, वो पढ़ लेते हैं। That in a gang milling, a number of milling cutters are fastened to the arbor to suit profile of the workpiece to the machine, ठीक है। देखिए ये जो प्रोफाइल थी यहाँ पे, ये एक टी शेप की थी, ठीक है, अगर आप नीचे से देखेंगे तो। सो अगर मान लीजिए कि इसकी जगह कोई कर्व बनाना हुआ, कॉन्वेक्स शेप बनानी हुई, कॉन्केव शेप बनानी हुई, सो दैट आल्सो वी हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कटर्स आर अवेलेबल, ठीक है। सो यू हैव टू यूज अकॉर्डिंगली। Next is the one of the major problem is the choice of the cutting speed. देखिए not only the choice of this cutting speed, but this as I said that the depth of cut is again you have to maintain. कटिंग स्पीड क्यों है, बिकॉज कटिंग स्पीड क्या होती है आपकी पाई डी इंटू एन, ठीक है, बट यहाँ पर क्या है अलग अलग डायमीटर्स हैं, सो इट विल बी D1N1 एंड पाई D2N2। तो मान लीजिए कि अगर आपका डायमीटर अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, तो नो डाउट रोटेशन स्पीड क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब सेम स्पिंडल पे आपका स्लैब माउंटेड है, सेम स्पिंडल पे आपका साइड एंड फेस कटर माउंटेड है, तो दोनों की स्पीड अगर सेम है, देन हाउ आप इसको लोग नहीं कर सकते, ठीक है। सो दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। सो विच इज डिटरमाइंड बाय द लार्जेस्ट cutter diameter, hence it is desirable that all the cutters should be similar in size and shape to follow to allow for larger speed in the feeds, ठीक है। so accordingly means अगर आपका जनरली क्या करते हैं हम लोग, अगर दो सेक्शंस होते हैं गियर और पिनियन में, तो हम लोग गियर की कटिंग स्पीड को प्रायोरिटी देते हैं एंड वी आर अकॉर्डिंगली सेटिंग दिस पिनियन। तो ठीक है, अगर पिनियन की सेट नहीं हो पा रही, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, गियर ट्रेन्स यूज कर सकते हैं, गियर ट्रेन यूज करते हैं, इनसाइड वी आर माउंटिंग दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गियर। तो हालांकि मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा थ्योरी ऑफ मशीन में, ठीक है,
तो दिस इज द गेइंग मिलिंग, ठीक है। नाउ गेइंग स्ट्रेडल मिलिंग इज नथिंग बट दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस गेइंग मिलिंग ओनली, ठीक है। बट थोड़ा सा कंस्ट्रेंट हो जाता है इसमें कि व्हेन two or more vertical surfaces are machined at a single cut, the operation is called as a straddle milling, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, बट you can mount you can mount means whatever the surface that you have to remove, you can mount the tool on that accordingly. इसका मतलब क्या है, देखिए by the way if you have to remove the vertical surfaces, मान लीजिए कि दो vertical surface है आपकी, ठीक है, ये बता देता हूँ मैं आपको। तो मान लीजिए कि ये आपकी एक स्लैब है, यहाँ से आपको मटेरियल रिमूव करना है और यहाँ से आपको मटेरियल रिमूव करना है, ठीक है। तो आप क्या करिए कि एक स्पिंडल लीजिए, यहाँ पे एक साइड एंड फेस कटर माउंट कर दीजिए, यहाँ पे एक साइड एंड फेस कटर माउंट कर दीजिए, ठीक है। सो दिस विल बी ए स्ट्रेडल मिलिंग, ठीक है। देखिए अगर ये वाला केस है तो आपका ये गेइंग मिलिंग ना कह के, देखिए आप इसको स्ट्रेडल मिलिंग कहेंगे, बट देखिए आपका स्ट्रेडल मिलिंग कुछ डिफरेंट नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेइंग मिलिंग ओनली, ठीक है। देखिए कुछ बुक्स में पहली तो ये डेफिनेशन रहती है स्ट्रेडल मिलिंग की, दूसरी जो डेफिनेशन रहती है वो ये है कि मान लीजिए आपके पास अगेन दिस इज अ स्टैंडर्ड एग्जांपल व्हिच इज आल्सो अवेलेबल इन नंबर ऑफ बुक्स। देखिए दूसरी डेफिनेशन ये रहती है कि मान लीजिए आप, ये आपका फिनिश प्रोडक्ट है जो आपको बनाना है, ठीक है। तो आपके पास इनिशियली यू हैव दिस ब्लॉक, ओके, जो आपकी सेम हाइट और डेप्थ ऑफ कट या विड्थ हो गया, तो आपके पास ये ब्लॉक है, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो सरफेस है ये पहले इरेगुलर है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल आप स्लैब मिलिंग यूज करेंगे, पहले इसको रिमूव करेंगे, पहले फिर इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने का मतलब है सरफेस को फिनिश करेंगे, नहीं पहले आपने ये सरफेस फिनिश कर लिया, फिर ये वाला फिनिश कर लिया। जब ये फिनिश हो गया, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ ग्रूव ओवर हियर, ये जो आपका ग्रूव है दिस वन, यू हैव टू मेक इट ओवर हियर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वर्टिकल एक स्लैब मिलिंग यूज करेंगे अगेन, एंड विल मेक द ग्रूव ओवर देयर, ओके। देन वंस इट इज कंप्लीटेड, देखिए यहाँ पे क्या है, आपको इस तरह से एंगुलर सेक्शन बनाना है, तो पहले एंगुलर सेक्शन बनाने के लिए आपको ये वाला पोर्शन बनाना पड़ेगा। सो व्हाट वी आर डूइंग इज सेम स्लैब मिलिंग वी आर यूजिंग टुवर्ड्स दिस साइड एज वेल, ठीक है। जब आपने इतना इंसर्ट कर दिया है इनसाइड, ठीक है, देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज द एंड दिस एंगुलर मील्स। एंगुलर मील्स, तो एंगुलर मील्स किस तरह के होते हैं, इस तरह के, ठीक है। सो नाउ एज इट इज रोटेटिंग यू आर पुशिंग इट इनसाइड, ठीक है, या फिर यू आर पुशिंग दिस वन इनसाइड। तो फर्स्ट आप इसको टुवर्ड्स दिस साइड मूव करेंगे, once it is inserted inside then you will move towards this side, okay। बट ये प्लीज ध्यान रखिएगा, हमने ये क्यों किया इस वाले ऑपरेशन के लिए कि इनिशियली आपने ये स्लैब क्यों किया, बिकॉज दिस ये जो आपका रोटेशन हो रहा है दिस कैन बी इंसर्ट इनसाइड दिस वेरी इजीली, ठीक है। क्योंकि ट्राइंग आपको इंक्लाइन जो मिल होता है उसके ऊपर फेस पे कटर्स बनाना बहुत मुश्किल होता है, then tool is also very costly, okay, so that's why we have to keep in mind। so finally you will get this product। तो देखिए इस तरह का भी एक एग्जांपल जो है गिवन रहेगा बुक्स में, so for the straddle milling, so no need to confuse, ठीक है, there are two things, so just जब भी क्वेश्चन में आए तो you have to think that what the question want to ask, fine। Okay, so these are just basic types of the operations that we can perform using the types of the milling machine and the types of the cutter. Now we are moving towards some of the objective problems that has been asked previously in the engineering services examination. So let's do it and then we'll go for the time calculation part. So the arbor of a milling machine is used to hold, देखिए arbor हमने पहले देखा था, so that is used to hold the cutting tool, ठीक है। So option C will be there, okay। Now in milling machine the cutting tool is held in position, okay। देखिए सिमिलर क्वेश्चंस है, दोनों अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, ठीक है। पहले आपको कटिंग आर्बर के बारे में पूछे, आर्बर के बारे में दिया है, देन व्हाट वी कैन होल्ड ऑन दैट। सेकंड कटिंग टूल दिया है एंड व्हाट वी ऑन विच वी कैन होल्ड दैट, ओके। सो प्लीज कीप इन माइंड दिस थिंग्स। तो देखिए कटिंग टूल जो है, देखिए आपका सबसे पहले चक रहता है, उसके ऊपर आपका स्पिंडल माउंटेड रहता है, और अगर आप स्पिंडल के ऊपर आपको शाफ्ट माउंट करेंगे और दैट शाफ्ट असेंबली इज वी कॉल इट एज अ आर्बर। ये तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल का बात। अगर आप वर्टिकल की बात करते हो तो स्पिंडल इज चक ओवर दैट स्पिंडल ओवर दैट दिस इज सॉरी स्पिंडल ओवर दैट चक, एंड चक के ऊपर आपका टूल होल्डर माउंटेड रहेगा जिसको हम बिलेट बोलते हैं, एंड देन वी आर इंसर्टिंग द टूल।
तो अगर मान लीजिए वर्टिकल का केस है देन इट इज अ टूल होल्डर, और बिलेट भी आप इसको कह सकते हैं, हमने इसको डिस्कस भी किया है लास्ट वीडियो में, ठीक है, दिस कैन बी अ बिलेट, ठीक है। और देन अगर हॉरिजॉन्टल की बात होगी देन इट विल बी अ आर्बर, ठीक है, डू नॉट कंफ्यूज। नेक्स्ट, द क्लाइंब मिलिंग इज चूजन व्हाइल मशीनिंग बिकॉज, देखिए पीछे से आते हैं, यस चलिए फर्स्ट से ही चलते हैं, द थिकनेस इंक्रीजेस ग्रेजुअली, तो देखिए डाउन मिलिंग का है तो आपका यहां से इंक्रीज हो रहा था, मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा था, थिकनेस की बात हो रही है, तो थिकनेस इज मैक्सिमम टू 0, ठीक है, ये आपने हमने देखा था। सो पहले क्या पूछ रहा है कि थिकनेस क्लाइंब मिलिंग की बात हो रही है, मतलब डाउन मिलिंग की बात हो रही है, थिकनेस इंक्रीजेस ग्रेजुअली, तो इसमें इंक्रीज नहीं होता है, इसमें डिक्रीज होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इट इनेबल्स द कटर टू डिग इन एंड डेप्थ ऑफ कट, देखिए इट इनेबल्स मीन्स it enables the cutter to dig in the depth of cut, देखिए it allows, it's not enables, it allow the cutter to dig, basically इसका क्या है, इसका प्रोसेस इस तरह का है, अगर मान लीजिए आप ये देखेंगे then this is nothing but it is treating like it is digging inside the earth, okay, it is digging inside the workpiece, so please keep in mind that it allows, down milling is allows, okay, it not enables, so ये अगेन आपका गलत हो गया, इसको देख लेते हैं पहले, बेटर फिनिश सरफेस फिनिश कैन बी ऑब्टेन, या ये आपका एक हो सकता है, रीजन उसका ये है कि whenever this has a same direction, ठीक है, whenever it has a same direction, because आपका यहाँ पे क्या था कि देखिए पहले आपका इनिशियल आपका मतलब आपका मैक्सिमम थिकनेस आपने मेंटेन किया है डिगिंग करने के समय, एंड देन इट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, तो आपका क्या है कि जो सरफेस फिनिशिंग है उसकी क्वालिटी क्या होगी कि इंप्रूव होती जाएगी, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। द स्पेसिफिक पावर कंजप्शन इज रिड्यूस, ऑब्वियसली इसमें क्या है कि आपको जितना भी पावर है वो, देखिए ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, देखिए मैं आपको क्वेश्चंस इस तरह से डील कर रहा हूँ कि यू शुड आल्सो फील कि आई एम आल्सो गिविंग ए इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है, कि मैं भी इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहा हूँ, यू शुड ऑप्टिमाइज इट, ओके, अदरवाइज आई नो द आंसर। तो थर्ड क्या है, सी ऑप्शन, दैट इज द स्पेसिफिक पावर कंजप्शन इज रिड्यूस, देखिए आपका यहाँ पे क्या है कि आपका इनिशियली मैक्सिमम सरफेस है, मैक्सिमम थिकनेस है, देन यू आर डिक्रीजिंग इट ग्रेजुअली, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो देखिए दो चीजें हैं, दो कंसेप्ट है कि आपका इनिशियली मिनिमम थिकनेस है, देन यू आर इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, आपका मैक्सिमम थिकनेस आपने ऑब्जर्व कर लिया, नाउ यू आर डिक्रीजिंग ग्रेजुअली, तो इनिशियली देखिए जब आप कम मतलब छोटे से बड़े पे जाते हैं, मतलब व्हेन यू आर हैविंग अ जीरो थिकनेस एंड यू आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, तो उस टाइम पे पावर कंजम्पशन क्या होता है, कम होता है, ठीक है, क्योंकि आपको एक लार्ज अमाउंट ऑफ पावर की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपको इनिशियली ज्यादा थिकनेस नहीं चाहिए थी, आपको सिर्फ जीरो थिकनेस चाहिए थी, तो अगर मान लीजिए जीरो से मैक्सिमम पे जा रहे हैं, दैट टाइम यू नीडेड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द पावर, बट व्हेन यू आर गोइंग इनिशियली आपका मैक्सिमम है एंड यू आर गोइंग टुवर्ड्स द जीरो साइड, देन यू नीड अ ह्यूज पावर, तो इसमें पूछ क्या रहा है देख लेते हैं, द स्पेसिफिक पावर कंजप्शन इज रिड्यूस, नहीं ये दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके, सो द ऑप्शन विल बी ओनली डी, ठीक है। Okay, so let's move to the next one. Okay, so the gain milling is a देख लेते हैं one by one, is a process for generating hexagonal surfaces. No, for that we are using the indexing, तो ये नहीं है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कटिंग गियर्स, नो दैट इज प्रोसेस ऑफ द कटिंग गियर्स, वो तो आपके लिए उसके लिए तो आप मिलिंग मशीन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले डी वाला देख लेते हैं, मिलिंग ऑपरेशंस कंबाइंड दैट विद टर्निंग, देखिए टर्निंग क्या होती है कि टर्निंग के लिए मतलब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज देयर, चाहे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हो, एंड देयर इज चक इज देयर, तो टर्निंग का मतलब क्या होता है कि on a chuck basically you are mounting the workpiece and then you are removing the material from the workpiece, तो इसमें देखिए अभी तक हमने मिलिंग में क्या पढ़ा है लास्ट वीडियो also, that we saw that we are holding the tool workpiece on the table, so in which that workpiece is not rotating, workpiece is just reciprocating, तो टर्निंग का तो कोई सवाल नहीं है in this case, so option will be C only, but देख लेते क्या है,
process in which two or more cutters are used simultaneously, ठीक है। So I think it's this is clear to you। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो बार पूछा गया है, मैच द लिस्ट वन विद द लिस्ट टू। तो लेथ है, मिलिंग है, शेपर है, ड्रिलिंग है। माना कि शेपर आपने नहीं पढ़ा है लेकिन उसके अलावा आप 3 पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज आल्सो द एडवांटेज ऑफ दीज क्वेश्चंस, ओके। मान लीजिए एक नहीं पढ़ा है तो उसके अलावा 2 या 3 तो पढ़े हैं, वो देख लेते हैं पहले। तो देखिए पहले मैं डायरेक्ट आंसर पे नहीं जा रहा हूँ, पहले आप देखिए कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। मशीन टूल्स के बारे में पूछा है, मशीन और मशीन टूल्स के बारे में पूछा है। पहला है आपका फ्लूइड। चलिए हमें मान लीजिए फ्लूइड पढ़ा है, तो फ्लूइड क्या है आपका, ड्रिलिंग के लिए भी है, मतलब इसमें 4 है। और मिलिंग के लिए जो टूल होता है दैट इज वर्टिकल मिलिंग मशीन के लिए हम लोग जो यूज करते थे, जिसमें 2 फ्लूइड 4 फ्लूइड्स मल्टी फ्लूइड्स कैन यूज। तो फ्लूइड जो है आपकी मिलिंग के केस में भी हो सकती है, ठीक है। नाउ यूनिवर्सल इंडेक्सिंग की अगर बात करें तो हालांकि हमने नहीं पढ़ी, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी आर यूजिंग इन द मिलिंग ओनली। तो लेथ में हम लोग इंडेक्सिंग यूज नहीं करते हैं, हमने पढ़ा है। ड्रिलिंग में हमने पढ़ी है कि नहीं करते हैं हम लोग, मिलिंग में हम लोग करते हैं। तो इसमें 4 की भी पॉसिबिलिटीज है और 3 की भी पॉसिबिलिटीज है। देखिए रोकर आप जिसने पढ़ा है उसको पता है, बट मैंने नहीं पढ़ा है, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको भले ही नहीं पता है। तो लीड स्क्रू आपने पढ़ा है, ठीक है, मैंने भी पढ़ा है। तो लीड स्क्रू कहाँ पे यूज करते थे, जहां पे हम लोग हाफ नट एंगेज करते थे। हाफ नट किस लिए एंगेज करते थे, 2 थिंग्स। फर्स्ट इज टू मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब कांस्टेंट फीड के लिए, या फिर मान लीजिए कि अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है टू प्रोड्यूस द थ्रेडिंग ओवर द वर्कपीस, तो फॉर दैट आल्सो वी नीड अ कांस्टेंट फीड ओनली, ओके। तो लीड स्क्रू कहाँ यूज करते थे हम लोग, लेथ में। तो मान लीजिए व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, दैट इज ए में 1 है आपका, सो दिस इज ए एंड दिस इज 1, सो ऑप्शन बी एंड डी विल बी करेक्ट, मतलब हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज देखिए मिलिंग मशीन है, तो 4 और 3 में से है कोई एक, ये यहाँ 3 है, ठीक है, ये हो सकता है, ये 2 है। देखिए रोकर आर्म नहीं हो सकती, दैट इज द पार्ट ऑफ द शेपर मशीन, ओके। सो ऑप्शन बी विल बी देयर, बट अगेन बाकी का देख लेते हैं। सी में 2 है, सो दिस इज शेपर आर्म, ठीक है। ड्रिलिंग मशीन में फ्लूइड है, ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए देखिए आप इसको उल्टा देखते हैं, ठीक है, तो बी में कहीं पे भी 4 है नहीं वैसे, ठीक है, बी में कहीं पे भी फ्लूइड है नहीं, तो ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्टली आप इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लूइड दिया हुआ भी नहीं है मिलिंग मशीन के लिए, इसमें कहीं पे भी फ्लूइड नहीं दिया है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, तो मिलिंग के लिए होगा। तो आप फर्स्ट से ना मूव करके आप ए से ना मूव करके आप डी से भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस आल्सो द ऑप्शन बी एंड डी इज अ पॉसिबिलिटी, ओके। देन यू विल चेक अनदर ऑप्शंस, फाइन। ओके, सो लेट्स कम टू द कैलकुलेशन पार्ट। तो देखिए कैलकुलेशन पार्ट के लिए आपको 2 मशीन्स हैं आपके पास, हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है। तो उसके अलावा टाइम के अलावा हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट वी आर कैलकुलेटिंग, वो मैं थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर देता हूँ। व्हाट इज द पैरामीटर दैट इज अवेलेबल टू अस, क्योंकि अभी तक हमने है ना इसमें फीड की बात नहीं की, या रोटेशनल स्पीड या फिर डेप्थ ऑफ कट की ज्यादा बात नहीं की है, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ कट की तो बात फिर भी की है, लेकिन फीड की अभी तक बात हमने नहीं की है। तो अगर मान लीजिए ये आपका वर्क पीस है, सो दिस इज द विड्थ, okay, and we are taking this the depth of cut, okay. So d is small d is represented over is the depth of cut, ठीक है। w is represented by the width of workpiece, ठीक है। देखिए यहाँ पे ओके, देखिए एक टर्म है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से, we call this as a feed, ठीक है। एंड ये जो हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज इन mm per minute। इसका मतलब क्या है, एंड देयर इज अ वन मोर टर्म दैट इज अ कटिंग स्पीड। सो दिस इज द कटिंग स्पीड, ठीक है, दैट इज आल्सो इन मीटर पर मिनट और mm per minute, ठीक है। अब अभी तक हम मीटर पर मिनट में कैलकुलेट करते आए हैं, तो मैं उसको मीटर पर मिनट में लिख देता हूँ। पहले मैं कटिंग स्पीड समझा देता हूँ। देखिए कटिंग स्पीड का मतलब क्या है, देखिए अगर मैं आपको थोड़ा सा एफिलिएट करूंगा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में क्या आता है कि वी आर होल्डिंग द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लाइक दिस एंड वी आर मूविंग टुवर्ड दिस साइड, ठीक है। तो जो मेन कटिंग होती है आपका बेसिक्स में, तो दैट इज ड्यू टू द टूल, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू आर डिफाइनिंग द कटिंग स्पीड विद द टूल, ठीक है, क्योंकि आपका चिप है तो वो चिप का वेलोसिटी अलग है, शेयर जोन में आपका वेलोसिटी अलग है, दैट कटिंग वेलोसिटी इज एफिलिएटेड विद द टूल, ठीक है। तो आप उसको टूल को क्यों कहते थे, because of that only the material is removed, okay, because of that only the crack is initiated।
So here also the cutting speed is affiliated with the, sorry, here also the cutting speed is affiliated with the tool only. So now अगर मान लीजिए इसका d diameter है and it is rotating with n rpm, capital N is the rotational speed rpm, ठीक है, तो this will be equals to pi into d into n upon 1000, ठीक है, अगर आप इसको मीटर पर मिनट में लेते हैं तो, ठीक है। दूसरा है दैट इज फीड, उसके लिए कुछ टर्म्स और हैं, दैट इज स्मॉल f, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, दिस इज कैपिटल F एंड दिस इज स्मॉल f, ठीक है। स्मॉल f इज आल्सो द फीड, बट दिस फीड इज इन mm per tooth, ठीक है। Z that we are using here is the number of teeth, ठीक है। So this is nothing but like F, मतलब इसका मतलब क्या है बेसिकली मैं समझा देता हूँ। फीड आप हमेशा देते थे वर्क पीस को, ठीक है। सो नाउ दैट यू आर गिविंग अ फीड ओवर हियर इन दिस डायरेक्शन, दैट दिस इज F, that how much mm, how much reciprocating motion or how much straight it is moving in per unit time, okay। now अब तक क्या करते थे आप लोग, जैसे आप अगर टर्निंग की बात करेंगे तो दैट वाज हियर देयर वी वर कैलकुलेटिंग द स्पीड स्मॉल f in mm per revolution, ठीक है। अगर आप ड्रिलिंग की बात करेंगे दैट टाइम आल्सो वी वर टेकिंग लेथ में, आप ड्रिलिंग में आप इसको यूज कर रहे थे mm पर रेवोल्यूशन में, ठीक है। सो प्लीज कीप इन माइंड दैट यहाँ पे आपको जो फीड है दैट इज यू आर कैलकुलेटिंग इन mm पर टूथ, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट इज, देखिए वहां पे क्या था कि एक रेवोल्यूशन में आपका कितना, हाउ मच अमाउंट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड, या फिर हाउ मच अमाउंट नहीं, हाउ मच अमाउंट ऑफ दिस टूल विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड, ओके, फॉर द टर्निंग ऑपरेशन। इसमें क्या है कि इसमें देखिए मान लीजिए कि ये आपका एक कटर है, ठीक है, इस तरह से आपने माउंट किया हुआ है, एंड नाउ दिस इज द सरफेस। सो व्हेन यू आर मूविंग, मान लीजिए यू आर मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड, ठीक है, यू आर मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड, ठीक है, ये आपका रोटेट हो रहा है। सो व्हेन यू आर moving toward this side, that how many tooths are coming in contact with this one, so that अब देखिए जब आपके सारे टीथ इसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है, तो दैट टाइम इट हैज कवर्ड सम लेंथ, तो वही लेंथ क्या होगी, बार बार कवर होती रहेगी क्योंकि आपकी फीड कांस्टेंट है, आपकी कटिंग स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं, जंक्शन मान के चल रहे हैं, तो ये क्या है, मान लीजिए कि इसमें 10 आपके टोटल 10 टीथ्स हैं, ठीक है, देयर आर टोटल 10 teeths, okay, over this milling machine, milling cutter। तो just assume that it has been covered 10 mm during this 10 teeth, it has been, मतलब 10 कंप्लीट हो चुके हैं एंड अगेन फर्स्ट वाला कांटेक्ट में आने वाला है, ठीक है। तो दैट टाइम इट हैज बीन कवर्ड 10 mm, तो इसका मतलब क्या है, 10 mm has been, sorry, this 10 mm has been covered under the 10 teeth, ठीक है। so this will be 1 mm per टूथ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि मतलब एक टूथ ने, एक टीथ की वजह से द अमाउंट ऑफ द मटेरियल व्हिच इज रिमूव्ड दैट इज 1 mm, ठीक है, आप समझे मेरी बात को। सो नाउ इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप सभी के लिए तो आप ऐसे बार बार नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग कि हाउ मेनी टीथ्स आर देयर, ठीक है। सो हाउ मेनी टीथ्स आर देयर, दैट इज नंबर ऑफ टीथ्स वी आर यूजिंग, एंड दैट टोटल फीड जो है आपका, दैट वी आर कैलकुलेटिंग लाइक f स्मॉल f into z into n, ठीक है। तो इससे आपका टोटल फीड निकल जाएगा। इसके लिए आपको अब इंडिविजुअली कि मान लीजिए कि 10 के बाद 11 से 20, मतलब फ्रॉम 11 to 20, फ्रॉम 21 to 30, फ्रॉम 31 to 40, इस तरह से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो फॉर दैट वी हैव कैलकुलेटेड दिस वन, फाइन, ओके। तो ये तो हो गया बेसिक वाला पार्ट। इसके अलावा एक चीज और है, मटेरियल रिमूवल रेट, ठीक है, दिस इज मटेरियल रिमूवल रेट, MRR। देखिए मटेरियल रिमूवल रेट क्या होता है, दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम दैट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द वर्कपीस पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो देखिए पर यूनिट टाइम मतलब किसकी बात हो रही है, विद द मटेरियल व्हिच इज रिमूव्ड फ्रॉम द वर्कपीस। तो ये वाला जो मटेरियल है जो आपने इनिशियली डेप्थ ऑफ कट चूज किया है यहाँ पे, एंड दिस मच नाउ द मटेरियल इज नॉट हियर, एंड मान लीजिए ये पूरा आपका रिमूव हो जाता है, ठीक है। सो व्हिच क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कमिंग इन कांटेक्ट, if you will see from this side कि ये वाला आपका initially contact में था, so this is the depth of cut that was contact and this is the width, okay। so this is the cross sectional area that was came in contact with the workpiece initially, so this is the cross sectional area that is W into D। now what is the feed that you are maintaining, यहाँ पे कटिंग वेलोसिटी की बात नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वर्कपीस मटेरियल किससे रिमूव हो रहा है, वर्कपीस से। वर्कपीस को क्या दे रहे हो आप, वर्कपीस को आप फीड प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। सो दिस विल बी नॉट वेलोसिटी बट cutting speed, it is a feed, okay। so this is capital F,
ओके, सो mm per minute, दिस इज डेप्थ ऑफ कट एंड दिस इज विड्थ। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रुक जाते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो विल सी द टाइम कैलकुलेशन पार्ट फॉर द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल, एंड I have taken the number of problems, so that also we'll see in the next video. Okay, so thank you so much guys.